हम लोग पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल हम फाइंडिंग कर रहे हैं डाइपोल के कारण किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल का क्या वैल्यू होगा। देखिए ये जो हमने फिगर ड्रॉ किया है, इस फिगर में ए बी आपका डाइपोल है जिसका पोल स्ट्रेंथ माइनस क्यू और प्लस क्यू है, और इसका स्मॉल लेंथ है, वो लेंथ आपका 2a है और वो आपका सेंटर ऑफ द डाइपोल है। हम इस सेंटर से r डिस्टेंस पर मेकिंग विथ एन एंगल थीटा हम एक पॉइंट P की कल्पना कर रहे हैं और यहां पर हम टोटल पोटेंशियल फाइंडिंग करेंगे। रियल डिस्टेंस इसका पॉइंट A से AP R1 है और B से BP आपका R2 है। जैसे कि लास्ट क्लास में आपको हमने बताया था, या जो भी लास्ट लेक्चर में कभी लेक्चर में आपको बताया था कि अगर सेवरल पॉइंट चार्ज हो तो इसके लिए जो आपका एट एनी पॉइंट हम पोटेंशियल फाइंडिंग्स करेंगे तो वो पोटेंशियल का वैल्यू सभी चार्ज के कारण वहां पर उत्पन्न होने वाली पोटेंशियल के अलजेब्रिक सम के बराबर होंगे। क्लियर? तो यहां मेरा सेवरल चार्ज ना होकर 2 चार्ज है, क्योंकि यू नो ए डाइपोल इज ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। क्लियर? डाइपोल इज सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। देन पोटेंशियल एट P, पोटेंशियल जो P पर होगा वो इसके कारण पोटेंशियल, माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल और प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल, ये दोनों पोटेंशियल का एट के बराबर होगा। क्लियर? क्लियर है? तो हम लोग इसको थोड़ा लिख डालते हैं, उसके बाद देखिए हम कैसे बनाते हैं इसको। सिंपल है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। आप लिखिए ए बी इज ए डाइपोल and O is center of dipole, P be any point at a distance r, at a distance r from center of the dipole, center of the dipole making an angle, making an angle theta. AP is equal to R1, BP is equal to R2, OP is equal to R. Now the potential at P due to minus Q charge, it is maybe V1 is equal to minus 1 by 4 pi epsilon naught minus Q by R. 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. The potential at any point due to a point charge is 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. Here, that is minus 1 by 4 pi epsilon naught Q by R1. Similarly, the potential at P, the potential
at P due to plus Q B2 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R2. That is the potential at P due to plus Q charge. Now, the net potential B is equal to B1 plus B2. That is B1 plus B2 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R2 minus 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. देखिए यहां हमारा ये रिलेशन Q बाई R2 और Q बाई R1 के रूप में आया, लेकिन मेरा मेजरमेंट सेंट्रल से R मेजरमेंट पर है, इसलिए हम ये कोशिश करेंगे कि R1 एंड R2, हाउ R1 एंड R2 कैन बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ R. Clear? Yes, sir. Okay. Since this is very small, AB is very small, therefore we produce the PO up to PM and draw AM perpendicular on PM. Okay. Yes, sir. Here, this R1 will be equivalent to PM. The R1 will be equivalent to PM. In the same manner, we draw a perpendicular from P on OP at BN. And this PN will be equivalent to R2. Clear? Here you may write that R1 is equivalent to PM, that is PO plus OM, and R2 will be equivalent to BN, PN, which is equal to PO minus ON. This findings can be done by drawing AM and BN perpendicular on PM. Clear? Yes, sir. Clear? Now here, in this triangle, this is the angle theta, this is the angle theta, this is the vertically opposite angle, it is angle theta. Now, if we calculate cos theta, then cos theta is equal to OM by OA, cos theta is equal to OM by OA, value of OA is A, hence OM is equal to, there implies OM is equal to A cos theta. In the same manner, in this triangle, in triangle OBN, in triangle OBN, cos theta is equal to ON by OB, and hence ON is equal to also, OB is also A, that is A cos theta. That is OM is equal to A cos theta, ON is equal to A cos theta. Now, here R1 is equal to PO plus OM. What is PO? PO is equal to R. Yes.
and OM is equal to A cos theta. Means R1 will be equivalent to R plus A cos theta. Okay? R1 will be equivalent to R plus A cos theta, and R2 will be equivalent to PO minus ON. PO is your R minus A cos theta. Now substituting this to value in this and simplifying this, we can calculate the potential at point P due to dipole. Clear? बात समझ रहे हैं? Yes, sir. तो आप देखिए, हम यहाँ कैलकुलेशन बना रहे हैं कि जैसे मेरे पास था V इजिकल टू V1 प्लस V2 और V1 था 1/4πε0 Q बाई R1 माइनस में, और V2 था आपका 1/4πε0 Q बाई R2. ऑब्वियसली आया था 1/4πε0 1/R2 माइनस 1/R. दिस Q उसमें से हमने कॉमन निकाल लिया, ये Q आ गया. अब 1/R2 माइनस 1/R1. हम R1 इजिकल टू R प्लस A cos थीटा हमने लिया था, और R2 इजिकल टू R माइनस A cos थीटा. हम इसका वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए. 1/R minus A cos theta minus 1/R plus A cos theta. Under simplification, this becomes R minus A cos theta into R plus A cos theta. Yes, sir. And this becomes R plus A cos theta minus R minus A cos theta. Clear? Yes, sir. अब इसका सब्सट्रैक्शन किए तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये दोनों R कैंसिल हो गया. यहाँ बचा आपका 2A cos theta by R square minus A square cos square theta. Clear? यहाँ देखिए, Q into 2A, P, dipole moment. That is the magnitude of the dipole moment. Okay? Yes, yes. Cos theta and R square minus A square. Clear? Yes, sir. And since the potential is a scalar quantity, therefore it has no direction and no necessity to maintain the direction of this. And they have no direction. Direction है ही नहीं तो मैं direction लगाऊं कहाँ? इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट लगाया. It is the magnitude of P, not with the direction. Because dipole moment is a vector quantity. It has magnitude as well as its direction. Okay? This completes the theorem for the potential due to a dipole. Now we shall discuss about equipotential surface. Equipotential surface. Equipotential surface. Equipotential. Equi मतलब equally. मतलब a surface having the potentials equal in each point. एक ऐसा सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल्स का वैल्यू समान हो. भाई कहां हो सकता है? ये हो सकता है कि अगर हम एक पॉइंट चार्ज को किसी हॉलो स्फीयर के सेंटर में रिसाइड कर दें. कोई हॉलो स्फीयर के सेंटर में अगर कोई पॉइंट चार्ज को हम रख दें तो ये जो सरफेस आपका बनेगा, इस सरफेस का ईच पॉइंट विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. काहे कि स्फीयर जो बनता है उसकी प्रत्येक बिंदु केंद्र से समान दूरी पर होती है. यदि ये केंद्र से समान दूरी पर होती है तो इसका मतलब है कि ईच पॉइंट पर पोटेंशियल भी समान होगा, बिकॉज द चार्ज इज सेम
the distance itself. This types of तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर स्फीयर है और उसका सेंटर में हम चार्ज रखते हैं तो इस स्फीयर के सरफेस में जितने पॉइंट्स हैं और सभी के सभी पॉइंट्स एट द इक्वल डिस्टेंस होता है। और चूंकि सबके लिए सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फंक्शनिंग कर रहा है इसलिए अगर उसका पोटेंशियल निकाला जाए तो दैट इज 1/4πε0 Q/r होगा यदि इसका रेडियस r है। तो दिस सरफेस विल बी इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर हम ऐसा ना करके एक दूसरा सरफेस की कल्पना करें इसके चारों ओर इससे बड़ा, मान रहा है इसका रेडियस हमारा r है, दिस विल बी ऑल्सो एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस प्रकार से सेवरल इक्विपोटेंशियल सरफेस यू कैन इमेजिन। जैसे आप इसको ठीक समझ लीजिए इस प्रकार से कि अगर आपके पास एक प्याज है और अगर वो कंप्लीट स्फीयर है, एग्जाम्पल कर लीजिए कंप्लीट स्फीयर है और दिस इज बिल्ड बाय द वेरी थिन स्लाइस, यानी पतले पतले छिलके के द्वारा बने होते हैं। अगर इसके सेंटर में एक चार्ज रख दिया जाए तो ऑल द सर्फेसेस दे आर द इक्विपोटेंशियल, बट इन बिटवीन टू सर्फेस देयर इज ए डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल। अब देखिए यहां ध्यान दीजिए, दिस इज द सरफेस having the potential 1/4πε0 Q/r for the first surface. This for the second surface. 8B for the first surface. B for the second surface. 1/4πε0 Q/r. Since r is greater than r, therefore this value is less than this value. Obviously b for the second surface will be less than b for the first surface. देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ कि जब हम दो डिफरेंट सरफेस की कल्पना कर रहे हैं, 2, 3, 4, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमारा है, क्लियर है। लेकिन यदि एक ही सरफेस की कल्पना कर रहे हैं तो इस सरफेस के ऊपर में जितने पॉइंट्स हैं ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एज वेल एज ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। लेकिन इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के ऊपर नहीं है। क्लियर क्लियर है। अब देखिए इसका क्या प्रॉपर्टी है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए surface where the potential of each point is equal is called equipotential surface. Now the property of the equipotential surface. देखिए हम कैसे प्रॉपर्टीज को ड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने इसका डेफिनेशन से मिला आपको, द पोटेंशियल ऑफ ऑल पॉइंट्स are equal. Second, first property. Second property. Let us consider the 2 point and a test charge plus Q not
plus Q naught is move from A to B. तो A से B तक अगर प्लस स्ट्रेस चार्ज Q हम ले आए तो ये आपका इसमें जो वर्क डन होगा WAB ये क्या होगा VB माइनस to carry the stress charge from one point to another point is equal to the potential difference between the 2 points. Stress charge that is VB minus VA या प्लस यूनिट चार्ज ले लीजिए तो आपका और बेटर होगा, ये पोटेंशियल का बराबर, और नहीं तो फिर बाई Q0 हमको करना पड़ेगा. क्लियर है? दैट इज VB माइनस VA, नहीं तो फिर बटा हमको करना पड़ेगा. हम क्यों उसमें फंसे, आप इजीली करें ताकि ये प्लस 1 चार्ज कम ले रहे हैं ऐसे बी तक ला रहे हैं. ठीक है, ये VB माइनस बी होगा. क्लियर? और VB माइनस बी होगा, VB का पोटेंशियल VB is the potential of B and VA is the potential of A and both the potentials are equal, hence VB minus VA is equal to 0. Means no work has to done to carry any charge from one point to another point. Hence what is conclusion? Hence no work has to done to carry any charge from one point to other point on equipotential surface. Now, here आपने देखा कि वर्क डन 0 है ना, वर्क डन आपका 0 है. क्लियर है? अब अगर इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये है, यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये है, सरफेस का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है ये है, तो यहां से यहां अगर डीएल है तो वर्क डन इज इक्वल टू E डॉट डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ द E डॉट डीएल, यही तो वर्क डन. क्लियर है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर हम लाएं तो हमारा वर्क डन जो करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा, E डॉट डीएल. क्लियर है? चलिए, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ, सिंस WAB is 0, then implies integration of E dot dl is equal to 0. And E dot dl, that is integration of E dl cos theta is equal to 0. Okay, means E may not be 0. E तो 0 नहीं हो सकता है, E may not be 0, dl may not be 0, then what will be 0? Then cos theta will be 0. Cos theta will be 0. Then implies theta is 90 degree. Means in the equipotential surface, the direction of electrical field is always perpendicular to the surface. Clear है? Yes, sir. Hence हम थर्ड पॉइंट में आ रहे हैं, थर्ड प्रॉपर्टी में. Hence in the equipotential surface, the electrical field will be perpendicular on the plane of the surface. Perpendicular on the, not plane of the surface, perpendicular to the surface. Perpendicular to the surface. Clear? तो हम ये देखें पहला बात कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कहने का मेरा मतलब है कि जिसके ईच एंड ऐसे सरफेस जिसके ईच पॉइंट पर हमारा
पोटेंशियल का वैल्यू समान होगा। उसमें गहराई ये है कि उसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई चार्ज को ले जाने में कोई काम नहीं करना पड़ेगा। नंबर तीसरा ये है कि ये यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, सरफेस का। थैंक यू स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मिलेंगे।